Today we are going to study respiration in plants. So, as we human needs two gases for respiration, that is oxygen and carbon dioxide. Similarly, the plants also uses two gases, oxygen and carbon dioxide, as their respiratory gases. What is the difference between respiration in plants and respiration in animals? As we know that plants are stationary, that is, they are not moving. Since plant is not moving, so they do not need much amount of energy. Therefore, their respiration rate is very slow. As all parts of the plant performs the respiration, there is very little need to transport these gases in the entire body of the plant. But in respiration in animals, the respiration is fast as animal require more amount of energy, and the respiration is done by one system, that is respiratory system. Therefore, gases need to be transported to the long distance. Now in plants, basically whether the stem, root or leaves, anything is doing respiration, the oxygen will be supplied by the process of diffusion. As the plants are branching in nature, because of that their surface area is more. If the surface area is more, the more things can be supplied. Now, how does the root respire? As we know that the plant has two systems, the root system and the shoot system. Suppose this is the soil surface and here we have got the root system. That is roots of the plant. The roots of the plant consist of roots, hairs, okay, and primary and secondary roots. So, what will happen? The soil will contain some gas molecules, and inside the cell the concentration of gas molecules will be lower, and in the soil particle the concentration of gas molecules will be higher. So molecules will start moving from higher concentration to lower concentration, that is from soil to the hairs, through the cells of root hairs, and in this way by the process of diffusion the gas will get passed. Same thing will happen in the second cell, third cell, and so on. Okay, so this process will continue till it reaches to the last cell of the root. Okay, now respiration in stems. Sorry, I forgot one thing to explain. As we know that plants need water to live, but sometimes if we put more water, और अगर हम पेड़ों को ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, पेड़ मर जाते हैं. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा कि जैसे कि ये सॉइल सरफेस है, यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स के पास सॉइल है और सॉइल में है एयर पार्टिकल्स. तो जैसे ही आपने वाटर पोर किया, थोड़ा सा पानी है तो पानी भी मिला और एयर भी मिली रूट को. लेकिन जैसे अगर आपने ज़्यादा पानी पोर कर दिया तो क्या होगा, जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो रूट से बाहर निकल आएंगे. ठीक है, इट विल लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट. हम बबल्स के फॉर्म में देखते हैं, जैसे ही हम सॉइल में पानी डालते हैं हम देखते हैं बुलबुले बाहर आते हैं. मतलब जो अपने एयर पार्टिकल्स हैं उनकी जगह वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे और इससे क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी एयर में, सॉइल में एयर की. एज अ रिजल्ट प्लांट्स विल नॉट गेट ऑक्सीजन टू रेस्पायर, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम्स द प्लांट्स विल डाई. नाउ रेस्पिरेशन इन स्टेम्स. तो हमको पता है कि प्लांट में दो तरह की स्टेम होती है. जो प्लांट सॉफ्ट होता है, ये छोटा सा प्लांट होता है हर्ब्स, तो हर्बेशियस प्लांट में सॉफ्ट स्टेम होती है, और बड़े बड़े ट्रीज में हार्ड या वुडी स्टेम होती है. तो जो सॉफ्ट स्टेम होती है उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो स्टोमेटा से क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, स्टोमेटा उनसे ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर रिलीज करता है. बट अगर स्टेम हार्ड है, वुडी है, तो स्टोमेटा की जगह ये सेम वर्क करने लगता है लेंटिकल. लेंटिकल क्या होता है, लेंटिकल रीजन होता है. लेंटिकल्स स्टेम में वो रीजन होते हैं जहाँ पे सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं. जैसे ये स्टेम है, अब स्टेम में एक रीजन होगा जहाँ पे सेल्स थोड़े से लूजली पैक होंगे, ये वाला रीजन.
ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ सेल लूजली पैक है वहाँ से गैसियस एक्सचेंज अलाउ हो जाएगा। और सेम चीज़ होगी, डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन रिच एयर विल एंटर इनटू द लेंटिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विल कम आउट ऑफ द लेंटिकल। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रेस्पिरेशन इन लीफ। अगर आज बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि लाइट गोल थी तो यहाँ पे सारे लोग हल्ला मचाने लग गए। इन लीव्स में जैसे हमने देखा कि प्लांट में जो हर्बेशियस सॉफ्ट स्टेम होती है उनमें रेस्पिरेशन होता है स्टोमेटा में, वैसे ही लीव्स में भी रेस्पिरेशन होता है स्टोमेटा में, ठीक है। बट जैसे कि दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन जो भी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ हो जाती है रेस्पिरेशन में, और प्लांट टेक इन करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को स्टोमेटा के थ्रू। बट सेम चीज़ नाइट में क्या होता है, कोई ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो प्लांट्स नॉर्मली हम इंसानों की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री एट द नाइट, क्यों स्पेशली पीपल ट्री वगैरह जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ऐसे कोई भूत वूत नहीं होता है वैसे, जहाँ तक है तो है, अगर होता है तो वो अब क्या ही बोलूँ मैं। बट mostly the scientific reason why not sleeping under the tree is beneficial in the evening time is this, because roots or these leaves, a whole plant started taking O2 and gives out the CO2, starts taking O2 and gives out the CO2. Thank you very much. With this we have completed nutrition in respiration in plants. Now we will start tomorrow respiration in animal. Keep watching, do subscribe. If you are watching, you love the video, please comment also. I would like to know what is there in the video. What did you like? What did you not like?